Good morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9, subject social science, and today we are going to discuss chapter number 2 of history. And the topic name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is the lecture 9. Student, firstly we will recall the previous lecture, and we have discussed about the February Revolution and October Revolution and the fall of the monarchy government in February Revolution, and the socialists formed the government on the basis of socialism in October Revolution in 1917. And after that, the October Revolution, all power in the hands of Bolshevik party, and the Vladimir Lenin was the leader of Bolshevik party. During the Civil War, Bolsheviks means Vladimir Lenin ordered the land distributed, and the Russian army began to break up, and many changes had occurred in the country, such as industry and bank were nationalized. But during the Civil War, many changes in the society, and the socialist revolutionary were called Greens, and the Bolsheviks were called the Red, and the Tsar supporters were called Whites. And during the Civil War, many new centralized economic policy were formed, such as centralized planning. It led to economic growth. Industry production increased by 100% in the case of oil, coal and steel. So student, let's start, and today we are going to discuss about the condition of after the Civil War. And firstly we will discuss about the Stalinism and collectivization. Stalinism means it was the vision of Stalin, and the Stalin was the leader of Bolshevik party after the death of Vladimir Lenin, and he formed the policy of collectivization of land. And after that we will discuss about Stalin policy, about the collectivization of land, and after that we will discuss about the impact of Russian Revolution on the global level, and the USSR. And you know, the USSR means the Union of Soviet Socialist Republic. And after that we will solve some question that I have assigned in previous lecture, and last I will give some question in your homework. So student, let's start. You know, during the Civil War जब बोल्शेविक पार्टी के साथ प्रो जारिस्ट सपोर्टर और क्या है सोशल रेवोल्यूशनरी के साथ उनका क्या होती है, लड़ाई होती है, तो उसको कहा था सिविल वॉर कहा जाता. सिविल वॉर होने के टाइम पे बोल्शेविक पार्टीज ने नई पॉलिसी फॉर्म की थी, जिसमें उन्होंने प्लान पॉलिसी बनाई थी. प्लान इकोनॉमी को प्लान करने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसी बनाई, और उसमें एक जो पॉलिसी बनाई थी वो थी कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. It was focused on collectivization of agriculture, but it brought down some negative impact on Russia economics. Planned economy जो सोवियत रशिया brought with it some disaster, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, और सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो हुई थी कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एंड आफ्टर दैट जोसेफ स्टालिन वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी and was the leader of Soviet Communist Party. You know, Bolshevik Party name changed, and its name was the Soviet Communist Party after the death of Lenin in January 1924. Vladimir Lenin की डेथ होने के बाद उसके जोसेफ स्टालिन को क्या है, बोल्शेविक पार्टी का मेंबर बना दिया, हेड बना दिया गया था. अब सारी जो पार्टी की कंट्रोल है वो जोसेफ स्टालिन के पास ही थी, वही सारी क्या पॉलिसी को क्रिएट करता था. नेक्स्ट है बेटा, by 1927 to 28, the town in Soviet Russia were facing an acute shortage of shortage of crops. During the 1927 and 28, Russia were faced the problem of shortage of food, and now that time the government fixed prices at which grain must be sold,
and but the peasant refused to sell their grains to government buyer at these prices. But peasants were against the price of those price were fixed by the government. अब सोवियत रशिया में 1927 और 28 में काफ़ी सारे फूड की वहाँ पे क्या होगी, शॉर्टेज होगी, और उसी समय गवर्नमेंट ने भी रेट फिक्स कर दिए कि सभी को कि कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर खरीदती है तो इससे रेट फिक्स कर दिए, लेकिन जो पीजेंट थे वो अपने क्रॉप्स को सेल करना नहीं चाहते थे जिस रेट पे गवर्नमेंट उनको खरीदना चाहती थी, क्योंकि वो काफ़ी कम थे और उनकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसी वजह से पीसेंट्स ने क्या है, मना कर दिया अपनी क्रॉप्स को सेल करने से। नेक्स्ट बेटा, स्टालिन believed the rich peasant and trader in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. Stalin thought the rich peasant and trader in the countryside for the purpose of earning more profit. They were holding large stock of food grains. So Stalin introduced the collectivization of Soviet agriculture. After that the Stalin introduced the system of collectivization of Soviet agriculture. It brought the great majority peasant into collective and state farms. बाद में वहाँ पे क्या, स्टालिन को ये लगता था, उसको मानना था कि जो रिच पीजेंट है या ट्रेडर हैं वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करने की वजह से काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रेन्स को स्टॉक करके रखते हैं, और जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है मार्केट में, जब रेट ज़्यादा हाई होते हैं तो उसमें अपने प्रोडक्शन को बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसी वजह से वो ज़्यादा क्या करते हैं, होल्डिंग करके रखा है, स्टॉक को उन्होंने क्या रखा है, लगता है काला बाजारी करते हैं। इसी वजह से उसको ये था, इसी वजह से स्टालिन ने क्या है, कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ सोवियत एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया, ताकि सभी लोग क्या है अपनी जो लैंड है वो क्या कर दें, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दें। इट ब्रॉट द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट इनटू कलेक्टिव, और जिसकी वजह से सभी लोगों की क्या होगी, मेजॉरिटी होगी, सभी लोग जो पीजेंट्स है वो इकट्ठे रूप में काम करेंगे और उनका जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन 1928 पार्टी मेंबर toured the grain producing area, supervised enforced grain collections and raided the kulkas. Kulkas means rich peasant, high peasant, well-to-do peasant. It was called kulkas. तो 1928 में पार्टी मेंबर ने क्या है, जहाँ पे ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा थे, उस एरिया में घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। दे सुपरवाइज द एरिया एंड दे सुपरवाइज एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन। दे enforced grain collection from the kulkas and they raided the kulkas. Kulkas mean the rich peasant was called kulkas. उन्होंने जो rich peasant थे उनके यहाँ पे रेड डालना स्टार्ट कर दिया, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और उनके पास जो ग्रेन थी उन्होंने इनको कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी जो पॉलिसी थी, ये सारे जो काम थे वो स्टालिन गवर्नमेंट ने किया, यानी बोल्शेविक पार्टी के मेंबर ने किया, हेड ने किया, क्योंकि वो चाहते थे कंट्री में जो भी लैंड हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाए वो इक्वली क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आगे बेटा, आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन हैंडेड ओवर टू द पीजेंट्स, और आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1917 लैंड हैड बीन हैंडेड ओवर द पीजेंट, जो लैंड है वो पीजेंट को दे दी गई थी, क्योंकि अब लैंड जो थी वो अब क्या पीजेंट की उनकी खुद की क्या होगी थी, सोशल लैंड होगी थी, जिसकी वजह से पीजेंट्स को वो ज़मीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी की सोशल लैंड बना दी गई थी। बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्मर्स इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलकाज और टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट एंड टू एस्टेब्लिश लार्ज स्टेट कंट्रोल फार्म्स। लेकिन अब स्टालिन ने पॉलिसी बनाई, स्टालिन ने ऐसा करा कि अगर हमें कंट्री को मॉडर्न करना है या एग्रीकल्चर को मॉडर्न करना है, डेवलपमेंट करना है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जो पीजेंट थे उनके पास जो ज़मीन थी वो काफ़ी कम थी। तो इसी वजह से जब काफ़ी कम एरिया पे ज़्यादा हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ करने के लिए, कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि कुलकाज यानी रिच पेजेंट्स को हमें एलिमिनेट करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, उनकी जो ज़मीन है उसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देना चाहिए, और इसी वजह से जो पीजेंट्स के बाद जो ज़मीन थी वो उनसे वापस ले ली गई, और उस पर क्या है लार्ज स्टेट कंट्रोल फार्म, और उस पर क्या कर दिया, सारी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, और सारी जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता सभी लेबर मिलके करते थे, और जो भी प्रॉफिट अर्न होता था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ स्टालिन।
आफ्टर दैट स्टैलिन पॉलिसी, अब कोलेक्टिवाइजेशन के बाद स्टैलिन ने पॉलिसी बनाई। फ्रॉम द 1929 द कम्युनिटी पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीजेंट टू कल्टिवेट इन कोलेक्टिव फार्म, खोलखॉज। कोलेक्टिव फार्म यानी कि जो भी लैंड को जो कलेक्टिव रूप से हम कल्टिवेट करते हैं उसको कहा जाता है खोलखॉज। एंड 1929 में कम्युनिटी पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट द collective land, but peasant were against the Stalin policy. Peasants worked on land and the profit of the collective farms was shared among them. स्टैलिन ने पॉलिसी बनाई कि जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे या पीजेंट्स वहाँ पे काम करेंगे उनमें जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Peasants who opposed collectivization destroyed their livestock. Thus, between 1929 to 1931, the number of cattle decreased by 1/3. Those peasants who opposed the collectivization system, they destroyed their food in the anger mood. उन्होंने गुस्से में आके क्या कर दिया, अपने ही लाइव स्टॉक जैसे अपने ही कैटल है, हॉर्स है, काऊ है, ओक्स है, उनको मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो अब गवर्नमेंट उनके क्या हो गई थी, अगेंस्ट हो गई थी। तो गुस्से में आके उन्होंने अपने ही कैटल्स को मारना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से 1929 से लेकर 1931 तक कैटल जो थे 1/3 उनको क्या गया था, मार दिया गया था। केवल काफ़ी कम कैटल रह गए थे क्योंकि जो पीजेंट थे, पीजेंट वर अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ कोलेक्टिवाइजेशन। नेक्स्ट बेटा, peasants who opposed the collectivization were severely punished and many were deported and exiled. However, production did not increase immediately due to the collectivization program. अब those peasants who opposed the system of collectivization, they were punished by the government and many were deported and exiled. Deported and exiled means forcefully removed from own country and exile mean forced to leave away फ्रॉम वन ऑन कंट्री, यानी कि जो भी पीजेंट उनके अगेंस्ट होता था उसको या तो क्या है कंट्री से निकाल दिया जाता था या उनको क्या करता था, उनको जानबूझ के छोड़ना पड़ता था। या डिपार्टमेंट को छोड़ना पड़ता था, इनको निकाल दिया जाता था पीजेंट्स को, जो भी उनकी बात हो, जो भी स्टैलिन की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते थे या गवर्नमेंट की बातों को फुलफिल नहीं करते थे या कोलेक्टिवाइजेशन की बात को फॉलो ना करके वो अपने लैंड को खुद ही कल्टीवेट करते थे। तो उसी वजह से काफ़ी सारे पीजेंट्स को क्या करना पड़ा था, अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी इतने सारी प्लान्ड इकोनॉमी करने के बाद भी, कोलेक्टिवेशन प्रोग्राम होने के बाद भी प्रोडक्शन हैड नॉट चेंज, डिड नॉट इंक्रीज्ड इमीडिएटली, और प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था इतने सारी पॉलिसी बनाने के बाद भी। तो इसी वजह से पीजेंट्स क्या हो गए थे, उनके अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट, द बैड हार्वेस्ट, ड्यू टू बैड हार्वेस्ट इन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1930 to 33 लीड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन इन सोवियत हिस्ट्री इन विच ओवर थ्रू 4 million died. Due to bad harvest, many people were died in famine. Lump-sum 4 million people were died in famine. And many with the other party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the concepts of cultivation. And many other party were criticized the industry, criticized the planned economy and the result of collectivization. And they were criticized the idea of collectivization of land. काफ़ी सारे लोगों ने उनके अगेंस्ट, स्टैलिन के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया कि प्लान्ड इकोनॉमी होने के बाद भी प्रोडक्शन में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था और सब लोग जो थे वो कलेक्टिवाइजेशन के रिजल्ट से ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि इतनी प्लान्ड इकोनॉमी होने के बाद भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। आगे बेटा, स्टैलिन एंड हिज sympathizers मीन्स हिज सपोर्टर charge these critics which conspiracy against socialism. अब जो स्टैलिन और उसके सपोर्टर जो थे उन्होंने जो भी उनके अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर रहा था, तो उनको जो क्रिटिसाइज कर रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या बना ली, एक पॉलिसी बनाई, एक कॉन्स्पिरेसी, उन्होंने क्या है साजिश करी कि उनको मारना स्टार्ट कर दिया। जो भी उनके अगेंस्ट जो भी आवाज़ उठाता था या बोलता था उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बहाना बना दिया कि ये सोशलिस्ट के क्या थे, अगेंस्ट थे।
अपनी बात को फेवर करने के लिए उन्होंने क्या है काफ़ी सारे पीजेंट्स को मारना स्टार्ट कर दिया। एंड मैनी वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन, और कईयों से क्या है झूठे उनसे क्या है मेक फॉल्स कन्फेशन किया गया, झूठी उनसे कन्फेस करा गया। एंड दे वर टॉर्चर, दे फेस टॉर्चर एंड एक्सिक्यूशन, एंड पीपल मैनी पीपल वर अटैक्ड एंड टॉर्चर्ड एंड एक्सिक्यूशन, और फोर्सफुली उनको मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया और काफ़ी को जेल में बंद कर दिया। एंड मैनी ऑफ देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, और काफ़ी सारे जो उसमें जिन भी पीजेंट्स को मारा गया या जो भी वहाँ पे पर्सन थे, जो भी वहाँ पे मेंबर थे, जो भी उनके अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा था, उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। और जिनको मारा गया, जिनको जेल में बंद करा, मोस्टली वो थे एजुकेशनिस्ट थे, प्रोफेशनल थे। इसी वजह से उनको क्या कर दिया, उनको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहते कि उनके अगेंस्ट कोई भी क्या करे, आवाज़ उठ सके, और कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी पावर को कम किया जाए। इसी वजह से उन्होंने उनके अगेंस्ट क्या कर दिया, उनके अगेंस्ट पॉलिसी बना के उनको क्या है जेल में डाल दिया। नेक्स्ट है बेटा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। यू नो स्टूडेंट, impact of Russian revolution on the global level and the USSR, and the as USSR means the Union of Soviet Socialist Republic, and you know बोल्शविक वर क्रिटिसाइज द वे वर्क। बोल्शविक का बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज होता था कि किस तरह वो काम करते हैं, क्योंकि बोल्शविक पार्टी दे वर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सेंसरशिप, दे वर इंट्रोड्यूस द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टिल दे वर पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी वो क्या है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर थे, क्योंकि दे वर बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड दे वर अगेंस्ट द सोशल प्रॉपर्टी, दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। And communist parties began to be formed around the world, like Communist Party of Great Britain. After the Revolution War in Britain, they were also started a communist party, and it was called Communist Party of Great Britain. Next, the Bolshevik encouraged colonial people to follow their ideas. Many non-Russian participated in the Conference of the People of the East in 1920. Conference name was the People of the East. Many Bolshevik member encouraged colonial people to follow the ideas of socialism. And the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party. बोल्शविक्स ने एक कॉमेंट्री, एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई, जिसमें क्या है एक प्रो बोल्शविक सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसमें क्या है सब लोगों के क्या है सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करने के लिए उनको बताया जाता था। इसी वजह से उन्होंने क्या है एक कॉमेंट्रियन एक यूनियन बनाई एज ए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शविक सोशलिस्ट पार्टी, और एक वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया कि किस तरह आप क्या करें, अपनी कंट्री में क्या करें, सोशलिज्म लेके आएँ, किस तरह अपनी कंट्री को सोशलिज्म के बेस्ड पे अपनी कंट्री को रन करें। तो इसी वजह से बोल्शविक का जो सपोर्ट थी वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे थी। सम नॉन रशियन रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। और ईस्ट में आपको पता है कि वहाँ पे क्या है वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी एंड स्कूल ओपन किए गए थे। सो मैनी रशियन रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी बाय द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन उसके बाद क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज ऑकर्ड ऑन 1939 to 45। सोशलिज्म रिसीव्ड ए ग्लोबल प्रेजेंस एंड एडमायरेशन। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते काफ़ी बड़े लेवल पे सोशलिज्म को क्या है बहुत बड़े लेवल पॉपुलरिटी मिल गई थी, ग्लोबल लेवल पे क्या हो गई थी प्रेजेंस हो गई थी, एडमायरेशन, काफ़ी सारे लोग उसको सोशलिज्म वाले आइडिया को फॉलो कर रहे थे अपने अपने लेवल पे, अपने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी लोग अपनी कंट्री को सोशलिज्म के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। बट बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द USSR एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैज़ डिक्लाइन। बट 20th सेंचुरी तक आते आते जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रेपुटेशन थी USSR की, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक,
जो उसकी रेपुटेशन थी वो डिक्लाइन हो गई थी, कम होती जा रही थी. एंड यूएसएसआर बिकम ए ग्रेट पावर विद डेवलप इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बट बेसिस फ्रीडम और पीपल वॉज एब्सेंट. क्योंकि यूएसएसआर बनने के बाद, नई नई पॉलिसी बनने के बाद वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई थी, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल फ्रीडम फॉर पीपल वाज एब्सेंट. लेकिन लोगों के वहाँ फ्रीडम क्या हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि सारे जो लोग थे वो सोशलिस्ट पे तो थे, कंट्री को डेवलपमेंट कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव कर रहे थे, एग्रीकल्चर को एनहांस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो लोगों को फ्रीडम थी वो काफ़ी कम होती जा रही थी. तो कुछ वही है, कुछ रेवोल्यूशन के बेस्ट पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके. And next student, today your homework solution. Question number 1. What do you mean by the reds, greens and whites in the context of Russia? Answer. In Russia, the red means Bolsheviks and the greens means socialist revolutionary and the white means pro-Tsarist. The Bolsheviks were the majority group of workers under the leadership of Lenin. Third, during 1918-1999, the Green Social Revolutionaries and the Whites pro-Tsarist controlled most of the Russian Empire, and they were backed by French, Americans, Britain and Japanese troops who were opposed to the growth of socialism in Russia. Question number 2. Enlist the main objectives of the Russian Revolution. Answer. A revolutionary demanded that Russia should withdraw from the First World War. Question 2. They demanded the land should go to the tillers. Go to the tillers means land should go to the peasants, and they were interested in nationalizing the industries and bank. They demanded an improvement in the working condition and the wages of the worker. Question number 3. What were the causes of the civil war between the Bolshevik and the Russian army of the non-Bolshevik socialist? An answer. The decision of redistribution of land by Bolshevik caused breakup of army, and clashes between supporters of autocracy, liberals and Bolshevik soldiers started. Third, the pro-Tsarist, the whites and the socialist revolutionary, the green, fought a civil war with Bolshevik, the red troops during 1918 and 1919. The pro-Tsarist and socialist were supported by French, Americans, British and Japanese troops. Supporter of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. This made him unpopular. And the Bolshevik, with the support of non-Russian nationalists and Jadidists, tried to control power by January 1923. And 7. In Khiva in Central Asia, Bolshevik colonists brutally killed local nationalists in the name of defeating socialism. And question number 4. Explain any 3 major effects of the Russian Revolution of October 1917 on Russian economy. Answer. Private property in the means of production was abolished. Land and other means of production were declared the property of the entire nation. And all the banks, large industries, mines and railway were nationalized. Centralized planning was introduced with the introduction of 5-year plans. The government fixed all prices to promote the industry growth during the
first two plans, 1927 to 32 and 1933 to 1938. Question number 5th. Explain the contribution of Lenin to the Russian Revolution. Answer is Lenin was a socialist leader who was against the autocratic rule of Tsar. Second, he put forward three demands such as the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, and banks be nationalized. These three demands were Lenin-April thesis. Lenin was against the provisional government, and Lenin led the foundation of communist state. After the October Revolution, the Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party, and he implemented his policies to make Russia a truly socialist society till his death in 1924. Today your homework, student. All questions are exercise question. First question, what were the social, economy and political conditions in Russia before 1905? Question number 2, in what ways the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917? Question number 3, why did Tsarist autocracy collapse in 1917? And question number 4, make two lists, one with the main events and effects of the February Revolution and the October, and the other with the main events and effects of the October Revolution. Write a paragraph on who was involved in each, who were the leaders, and what was the impact of each on Soviet history. Question number 5, what were the main changes brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution? And question number 6, write a few lines to show what you know about. First, Kulkas. B, the Duma. C, women's worker between 1900 to 1930. D, the liberals. And E, Stalin collectivization program. And student, all question done in your fair note. Thank you.